الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وأصدق الصادقين قوله الحق اللهم صل على محمد وعلى محمد اور ہے نا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی. کس بات کی؟ أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا کہ اے موسیٰ اور ہارون وہ جو سامنے شہر دکھائی دے رہا ہے اس میں تم اپنے قوم کے گھر بناؤ. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اور تم دونوں بھائی اپنے اپنے گھروں کو بنی اسرائیل کا قبلہ قرار دو. ایسا ویسا قبلہ نہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ تمہارے گھر ایسے ہونے چاہیے جن کی طرف نمازیں قائم ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ اور ہارون تمہارے گھر قوم کے قبلہ ہونے چاہیے. کیا موسیٰ کے وقت کوئی قبلہ نہیں تھا؟ تھا نا. تو قبلہ کی موجودگی کے باوجود موسیٰ کا گھر بھی قبلہ, ہارون کا گھر بھی قبلہ. حدیث ہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. محمد والے محمد بلندر صلوات. یا علی تیری میرے ساتھ وہی مثال ہے جو ہارون کے ساتھ موسیٰ کی. تو اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ جس طرح کل موسیٰ اور ہارون کے گھر بنی اسرائیل کے قبلہ تھے, آج ہر کلمہ گو کے لیے نبی اور علی کا گھر قبلہ ہے, وہ بھی قبلہ کی موجودگی میں قبلہ. اب اگر کوئی بنی اسرائیل موسیٰ یا ہارون کی گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے, کافر ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دونوں بھائی اپنے اپنے گھروں کو بنی اسرائیل کا قبلہ قرار دو. محمد اور علی کے گھر بھی کعبہ کی موجودگی کے باوجود, کعبہ بیت اول تھا, قبلہ اول کیوں نہیں تھا؟ اللہ نے 7ویں آسمان پر بالکل عرش کے نیچے, بالکل اسی کے نیچے عرش کی ایک شبی بنوائی جس کا نام رکھا ذرہ. اللہ نے 4تھے آسمان پر بالکل ذرہ کے نیچے بالکل اسی کی شکل پہ ذرہ کی ایک شبی بنوائی جس کا نام رکھا بیت المعمور, اور اسے فرشتوں کا قبلہ قرار دیا. بیت المعمور یوں ہے ذرہ کے نیچے. حدیثوں میں آیا ہے اگر کوئی ذرہ کی چھت پہ بیٹھ کے قطرہ ٹپکائے گا پانی کا تو وہ بیت المعمور کے چھت کے وسط میں گرے گا. جب آدم کو زمین پہ اتارا جنت سے نکال کے تو یاقوت کا بنا ہوا بیت المعمور کی شبیہ کا ایک گھر آدم کے ساتھ نازل کیا اور کہا اسے عین وسط زمین پر بیت المعمور کے نیچے رکھ اور اس کا نام کعبہ رکھ. پہلا بیت یہی ہے, آدم کے ساتھ نیچے آیا ہے. اول بیت ہے, قبلہ اول کیوں نہیں؟ یہ کیا ہے؟ کبھی ہیکل سلیمانی قبلہ ہے, کبھی بیت الحم قبلہ ہے, کبھی مسجد اقصی قبلہ ہے. کعبہ کیوں نہیں؟ آوازی قدرت آتی ہے اس لیے اگر ہم کعبہ کو پہلے قبلہ بناتے پھر علی کو بھیجتے تو لوگوں کو کہنے کا موقع مل جاتا کعبہ علی گھر ہے, کعبہ ولی گھر ہے. اول بیت تھا اس لیے ہم نے قبلہ نہیں بننے دیا تاکہ علی کے بعد بنے, زمانہ سمجھے علی قبلہ ساز ہے, قبلہ علی ساز نہیں. کل ان کے گھر قبلہ تھے, آج ان کے گھر قبلہ ہے. سورہ نحل ہے اوہا ربک الی النہار ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات
फसलों की सो बोला रब्बे के ज़ोलाला यखरुजु मिन बुतूनहा शराबुन मुख्तलिफुन अनवारुहु फीहा शिफाअन लिन्नास। हमने वही की शहद की मक्खी को कि हमारी वही की रोशनी में घर बना। कहाँ बना मालिक? मिनल जिबाल बुयूतन पहाड़ों पे बना, व मिनल शजरे दरख्तों पे बना, व मिम्मा यारिशून सीढ़ियों पे बना, छतों पे बना, बुलंद जगहों पे बनाओ। फिर फलों का पाकीज़ा रस जूस। और ए शहद की मक्खी अपने रब की तमाम सबीलों के सामने जलील बन के रहना। सबील लक़ब है अमीरुल मोमिनीन का। अब जब बहुत सी सबीलें हैं तो अमीरुल मोमिनीन के बेटे ही होंगे। अपने रब की तमाम सबीलों के सामने जलील बन के रहना। सिला क्या दूंगा? तेरे शिकम से शराब निकलेगी, मशरूम निकलेगा, पाकीज़ा मुख्तलिफिन अनवारुहु जिसके रंग मुख्तलिफ होंगे। फीहा शिफाअन लिन्नास इसमें इंसानों के लिए शिफा होगी। कुरान कह रहा है अगर मक्खी भी आले मोहम्मद के दरवाजे पे जलील नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद अगर हम मक्खी की थूक को शिफा मान सकते हैं तब हम अली के बेटे की मट्टी को खाकी मक्खी है इनके सामने जलील होकर झुक गई है। इंसानों में शिफा बांट रही है, वो खुद नहीं इसका लुआब। और जिनका दरवाजा है वो किस हद तक शिफा बांटते होंगे। मक्खी के घर वही से बनते हैं, खुद अहले बैत के घर कैसे बनते होंगे। सूरे नूर है अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़ मासलो नूरी। अल्लाह कहता है मैं जमीन और आसमान का नूर हूँ और मेरे नूर का एक नमूना भी है। नमूना होता क्या है? नमूना होता तो उसी जैसा है जैसी जिन से होता है। जली कह रहा है मेरे नूर का एक नमूना भी है। वो जुज सही ये कुन सही लेकिन जुज है कुन जैसा। अल्लाह ये तेरे नूर का नमूना कहाँ मिलता है? फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफा। मेरे नूर का नमूना उन घरों में है जिन घरों की इज्जत का हुक्म मैंने दे रखा है और जिनमें बेइज्जत दाखिले की इजाजत मैंने नहीं दी। इजाजत का मेयार क्या है? हदीसी के साथ तो सब पढ़ते हैं और हमारे इमाम जमा फरमाते हैं कि जिन घरों में हदीसी के साथ पढ़ी जाती है मैं उन घरों में बिन बुलाए तशरीफ फरमा हो जाता हूँ। तो इससे बड़ी क्या इज्जत होगी उस घराने की कि सुल्तान ममलकत अहदियत उस घर में बिन बुलाए तशरीफ फरमा हो जाए। उसमें हम पढ़ते नहीं हैं। जिब्रील ने पूछा चादर के नीचे कौन है? अल्लाह ने तारीफ करवाया। मैं वो सारी बात दोहराना नहीं चाह रहा, बस जो जुमला मेरे मजमून से मरबूत है वो मैं कहने लगा हूँ। उसमें हम पढ़ते नहीं हैं अताज़ुन ली या रब्बे अन अहबतु इलल अर्ज़ अकूना माहुम सालिसन जन्नत के साथ। या अल्लाह मुझे इज़्न है, मुझे इजाजत है मैं जमीन पे चला जाऊँ, चादर उठा के इनके साथ छटा हो जाऊँ। अल्लाह ने कहा नाम का तज़िम तो लगा, हाँ इजाजत तुम्हें। अब ये अल्लाह से इजाजत ले चुका है, इससे तो चाहिए आए चादर का कोना उठाए और दाखिल हो मोहम्मद के खुदा से पूछ चुका है, जब ये अली के किरदार से पूछ चुका है, जब ये बतूल के परवरदिगार से पूछ चुका है, इससे तो रुकना ही नहीं चाहिए। लफ्ज़ ये हदीस के साथ चारपाई के नीचे आके रुक गया, सर झुका के कहने लगा इन्नल्लाह युखरिकु व सलामु व तहियतु वल इकराम। अल्लाह ने आपको सलाम भेजा है, तहियत और इकराम से नवाजा है। अल्लाह ने मुझे इजाजत दी मैं चादर के नीचे आ जाऊं। फहल ताज़ुन ली या रसूल अल्लाह आपकी इजाजत है? जिब्रील क्यों पूछो इजाजत जब इजाजत अल्लाह से ले चुके हो? कहा इसलिए अगर इन्होंने ना कर दी तो उसकी हाँ भी ना में तब्दील हो किबला क्योंकि उनमें तौहीद के नूर का नमूना। अब मालूम हुआ घर खुदा का हो या उसके नूर के नमूने का बराबर होते हैं। गवाहियों के लिए भी मैं यही मेरा इस्तेमाल करूंगा, गवाही खुदा की हो
या उसके नूर के नमूने की बराबर होते हैं। अली काबे में आए, वीरा से मीरा से इलाही बन के आए, अल्लाह के घर के वारिस बन के आए। अर्श और कुर्सी, ये जो दो लफ्ज हम सुनते हैं वो इस तरह की कुर्सी नहीं होती। वासे हो कुर्सी वो समावत वल अर्श, जिसने सातों आसमान और जमीनों को घेरे में ले रखा है। दर हकीकत इंतहाई जमान का नाम है कुर्सी। जहाँ जमान खत्म हो जाए और ला जमानी शुरू हो जाए वो कुर्सी है, और जहाँ मकान खत्म हो जाए और ला मकानी शुरू हो जाए वो है अर्श। अल्लाह ने सातवें आसमान पर बिल्कुल अर्श के नीचे, बिल्कुल उसी के नीचे अर्श की एक छवि बनवाई जिसका नाम रखा जुर्रा। इसी से लफ्ज़ से जरी निकला है। जरी है क्या? इनकी कब्रों के ऊपर एक जाली जिसे अल्लाह अर्श की छवि कहता है। जो इन जाली के मालिक होंगे वो निगाह इलाही में क्या होंगे। और चौथे आसमान पर बिल्कुल जुर्रा के नीचे, बिल्कुल उसी की शक्ल पे बैतुल मामूर, और जमीन पर वजह अर्ज पर मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब चारों तरफ से एक है। क्यों? अल्लाह कह रहे सूरह हज में कि हमने काबे को जमीन के सेंटर में इसलिए बनाया ताकि चारों तरफ से बसने वाली मखलूक का हक बराबर हो। तो इधर से आए उनका हक बराबर, इधर से और 13 रजब की रात अली काबे के सेंटर में पैदा हुए थे। जमीन के सेंटर में इसलिए भेजा ताकि हर मुसीबत ज़दा अदरिकनी कहते हुए झिझके ना। मस्जिद नबवी बनवाई थी तो इसके वस्त में मस्जिद थी और इसके चारों तरफ घर थे। रसूल का अपना भी और सहाबा इकराम के भी, सबके दरवाजे सहन मस्जिद की तरफ खुलते थे। लोगों का गुजरना अल्लाह को अच्छा नहीं लगा, फौरन वही आ गई, ए मेरे हबीब सब दरवाजे बंद सिवाय 2 दरों के। वो कौन से 2 दर थे जो बंद नहीं हुए? एक नबी का, एक अली का। 2 जोड़ियां बोली रसूल के सामने, दोनों का बुजुर्गी का रिश्ता था रसूल के साथ। 2 रसूल के चचा बोले, 2 ससुर बोले। ससुर तो नबी समझ के पहले चुप हो गए, अब चचा थे वो कुछ ज्यादा बोले। फरमाया या रसूल अल्लाह ये क्या है? हमारे घर का बच्चा है अली, कल के बरखुरदार का दर खुला है और सफेद रीश चचा का दरवाजा बंद। फरमाया ना अली का दरवाजा मैंने खोला और ना चाचा जान आपका दरवाजा मैंने बंद किया। अगर आप मुझे अल्लाह का नबी समझते हो, मैं तो वही इलाही के अलावा लफ्ज जुम्बिश में नहीं लाता, उसके हुक्म से मैंने ऐसे किया। अब्बास चचा थे, एक रोशनदान रखने दो, इजाजत नहीं। हमजा उठे, मैं सिर्फ 2 साल बड़ा हूँ तुमसे, हम दोनों भाई भाई भी हैं, चचा भतीजा भी हैं, दोस्त भी हैं, एक सुराख ही खुला रखने दो। कहा हमजा मुश्तरी के बराबर भी नहीं। कहा क्यों? क्योंकि जिस हालत में तुम्हारी नजर डालना अल्लाह को पसंद नहीं, उसी हालत में तुम्हारा नजर डालना भी अल्लाह को पसंद नहीं। अली का क्यों छोड़ दिया? कहा इसीलिए जिनके बच्चे नुतफे से पैदा होते थे उनके दर बंद कर दिए, जिनके बच्चे नाजिल होते थे उनके दरवाजे। इनके घर या किबला है या मस्जिद है। यही वजह है कि जब हमारे बाद में इमाम आएंगे तो कूफे में जो मस्जिद सहरा है यही हमारे बाद में इमाम का घर होगा। तब पता चलेगा बशर किसको कहते हैं और हुज्जत किसको कहते हैं। यही वजह है जब अली आए तो काबे में, शहादत पाई तो मस्जिद में। जो दुनिया का सबसे बड़ा सखी होगा वो दुनिया का सबसे बड़ा बहादुर नहीं हो सकता। क्यों? सखी क्योंकि बहादुरी के लिए दिल का सख्त होना जरूरी है, तहारत के लिए दिल का नर्म होना जरूरी है। जो सबसे बड़ा आबिद होगा वो सबसे बड़ा बहादुर नहीं हो सकता। लेकिन अगर इन 2 चीजों को एक में देखा जाए तो उसका नाम है अली इब्न अबी तालिब। 19 रमजान की शब का इफ्तार जो की रोटी और एक नमक के टुकड़े के साथ अपनी बेटी उम्मे कुलसूम की याद किया। और मौला फरमाते थे ये वही रात है जब अली की दाढ़ी उसी के खून में रंगी हो गई।
مولا जब भी कभी भी अपने बेटे जो है जब अली आए तो काबे में, शहादत पाई तो मस्जिद में। जो दुनिया का सबसे बड़ा सखी होगा वो दुनिया का सबसे बड़ा बहादुर नहीं हो सकता। क्यों? सखी क्योंकि बहादुरी के लिए दिल का सख्त होना जरूरी है, तहारत के लिए दिल का नर्म होना जरूरी है। जो सबसे बड़ा आबिद होगा वो सबसे बड़ा बहादुर नहीं हो सकता। लेकिन अगर इन दो चीजों को एक में देखा जाए तो उसका नाम है अली इब्न अबी तालिब। मौला ने 19 रमजान की शब का इफ्तार जो की रोटी और एक नमक के टुकड़े के साथ अपनी बेटी उम्मे कुलसूम की याद किया और मौला फरमाते थे ये वही रात है जब अली की दाढ़ी उसी के फूल में रंगी हो गई। मौला जब भी कभी भी अपने बेटे या बेटी के घर जाते थे तो वो सारी रात उसी के घर इबादत करते थे। लेकिन आज उनकी इबादत करने का तरीका जुदा था। हर 2 रकत के बाद बेचैन हो जाते थे, सहन में गिरते थे, आसमान की तरफ देखते थे और कहते थे अभी वो वक्त नहीं आया है, अभी वो वक्त नहीं आया है। एक मर्तबा अली ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। अली ने गुलाम को हुक्म दिया कि वो देख के आए कौन आया है। गुलाम वापस आया, कहा मौला हुज़ैफा यमनी 40 आदमियों के साथ नंगी तलवारें लिए खड़े हैं। अली ने हुज़ैफा से पूछा हुज़ैफा क्यों आए हो? हुज़ैफा ने कहा मौला आपने ही तो कहा था कि आप इसी रात को शहीद कर दिए जाएंगे। ये कैसा हो सकता है कि आप शहीद हो जाएं और हम जिंदा रहें? अली ने कहा हुज़ैफा तुम मुझे क्या मानते हो? कहा इमाम मानता हूँ। तो मैं तुम्हें हुक्म करता हूँ वापस चले जाओ। एक मर्तबा जब अली बाहर निकलना चाह रहे थे तब दोनों तरफ से मुर्गाबियों ने उनका रास्ता रोक लिया। उम्मे कुलसूम घबरा गई। बाबा मेरी घर की पली हुई मुर्गाबियाँ कभी भी इस तरह का बर्ताव नहीं करती। अली ने कहा बेटी मेरे जाने के बाद तुम इनका ख्याल रखना, तुम इनको खाना और पानी देना और अगर ना हो सके तो इनको आजाद कर देना। मेरा मौला अली वो है जो जानवरों तक का इतना ख्याल रखते हैं। जब अली बाहर निकलने लगे तब जंजीरें दर उनकी कमर से लिपट गई, गोया फरियाद कर रही है मौला ना जाइए। अली मस्जिद कूफा में पहुंचे, गुलदस्ते आजान पे खड़े होकर आजान दी। उतने मुलजिम सीने के बल सो रहा था, जगाने के बाद मेहराब इबादत में चले गए। पहली नमाज शुरू की। पहली रकत के दूसरे सजदे में इब्ने मुलजिम ने वार किया। बेइख्तियार मेरे मौला ने फरमाया बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला फी सबीलिल्लाह व अला फुस्तो बिरब्बिल काबा। काबे की रब की कसम अली कामयाब हो गया। मेरे मौला ने ये जुमले बदर में नहीं कहे, खंदक में नहीं कहे, खैबर में नहीं कहे। एक मर्तबा अली ने हसन को कहा बेटा नमाज तमाम करवाओ। अली ने हसन के पीछे बैठे बैठे नमाज सुबह तमाम की। नमाज के तमाम होते ही उन्होंने मट्टी उठाई मस्जिद से और अपने जख्मी सर पे डाली और कहने लगे हम इसी मट्टी से खल्क हुए हैं, इसी में दफना दिए जाएंगे, एक दिन इसी से उठाए जाएंगे। मेरे मौला ने अपना सर सजदे में रखा और कहने लगे ए परवरदिगारा जब कयामत का दिन होगा और सारे अंबिया और मुरसलीन शौदा और सिद्दीकीन तेरे बारगाह में खड़े हो तो ए मालिक तू गवाही देना कि अली ने कभी तेरी इबादत में कमी नहीं की। अली का सर उठाना था कि गुनूदगी की कैफियत तारी हो गई। हसन ने अली का सर अपनी गोद में रखा। हसन की आंखों से आंसू टपके अली के चेहरे पर गिरे। अली ने आंखें खोली, गुनूदगी की कैफियत थी। अली ने पूछा हसन बेटा ये तो बताओ हुसैन कहाँ है? कहा बाबा वो आपके पैरों से लिपटे हुए हैं। जब अली ने निगाह डाली तब देखा हुसैन दोनों पैरों को सीने से लगाए तड़प तड़प के रो रहे हैं। कहा बेटा सब्र करो मत रो, ये देखो ये इब्राहिम है, ये इस्माइल है, ये तुम्हारे नाना मोहम्मद मुस्तफा है, ये तुम्हारी नानी खदीजतुल कुबरा है। ये क्या कहेंगे? इब्राहिम क्या कहेंगे? इस्माइल क्या कहेंगे? तुम्हारे नाना मोहम्मद मुस्तफा क्या कहेंगे? तुम्हारी नानी खदीजतुल कुबरा क्या कहेंगी?
کہ علی کا بیٹا صبر نہیں کر سکتا؟ یہ دلاسا دینے کا طریقہ سوائے آل محمد کے پورے دنیا میں کہیں نہیں۔ کل عاشور کے دن جب حسین نے یا علی مدد کے برچھی نکالی، کہا بیٹا صبر کرو۔ ابراہیم کیا کہیں گے؟ اسماعیل کیا کہیں گے؟ تمہارے دادا علی مرتضیٰ کیا کہیں گے؟ تمہاری دادی فاطمہ زہرا کیا کہیں گی؟ اجرکم اللہ۔ 21 رمضان کی قیامت کے صبح آئی، علی بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کے برابر اصحاب بیٹھے ہیں۔ ایک اصحاب ایک سوال پوچھ رہا تھا، علی جواب دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ علی نے کہا، یہ میرا وقت آخر ہے، تم سب اپنے گھر چلے جاؤ۔ تو اصحاب کے جانے کے بعد علی نے حسن کو امامت دی اور کہا بیٹا میرے جانے کے بعد گھر کے جانوروں کا خیال رکھنا، ان کو کھانا اور پانی دینا، اور اگر نہ ہو سکے تو ان کو آزاد کر دینا۔ ایک مرتبہ گھر کے سارے بچوں کو اکٹھا کیا، ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ پہ دیا۔ جب سارے ہاتھ تھم چکے تھے، ایک مرتبہ حسین اور عباس کو بلایا، عباس کا ہاتھ لیا، حسین کے ہاتھ میں دیا۔ میرے سمجھ میں نہیں آیا اگر حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا یا حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں، کہا عباس میرے حسین کا خیال رکھنا۔ لعنت اللہ علیہ وسلم۔